So today we are going to discuss few numericals related to the mole concept. In previous video we were discussing about the mole concept details. So suppose this is question number 1. Calculate the number of moles in the following. Calculate the number of moles in the following. In previous video we have set up few numericals to calculate the number of moles. We have set up 3 formulas. Using that formulas we can convert given mass of a substance into mole, given volume of a substance we can convert into mole. Similarly, we can convert given number of molecules into mole. So the question is calculate the number of moles in the following. Suppose we have to calculate the number of moles in 49 gram of sulfuric acid. So we have to calculate 49 gram of sulfuric acid is equal to how many mole of the sulfuric acid. So हम लोग क्या करना है, गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करना है. तो गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 जो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. सो गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास को सब्सटेंस का मोलर मास और एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. सो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए कंपाउंड. सो हम लोग 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन मास को सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट molecular mass, also known as molar mass. Molecular mass is also known as molar mass. Why molecular mass is also known as molar mass? Because 1 mole of a substance is equal to what? Gram molecular mass of the substance. That means gram molecular mass of a substance is equal to 1 mole of the substance. So molecular mass is also known as molar mass. So molar mass of sulfuric acid, first of all we have to calculate. तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए पर्टिकुलर एक कंपाउंड में जितना एटम्स होगा सभी एटम का एटॉमिक मास से प्लस करना है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इन द सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्लस सल्फर एटम 1, हाउ मेनी मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 32, ऑक्सीजन एटम 4, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 2 प्लस 32 प्लस 64. सो सभी को प्लस कर देने से ये क्या हो जाएगा 98 ग्राम. सो मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम 98 ग्राम. सो अभी गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज हाउ मेनी ग्राम 49 ग्राम. सो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. देयरफॉर 49 gram of sulfuric acid is equal to how many mole of sulfuric acid. Then given mass of sulfuric acid 49, you have to divide it by 98. Then ये convert हो गया into mole. So this is equal to how many mole? This is equal to 1 by 2 mole. That means half mole. That means this is equal to 0.5 mole. So given mass को हम लोग convert कर दिया into mole. तो गिवन मास को मोल में कैसे कन्वर्ट किया, गिवन मास को डिवाइड किया बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. सपोज वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू सोल्व देन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम इज एन एलिमेंट. कैल्शियम इट इज a substance which is containing calcium atoms. So एलिमेंट्स का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है. मास ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. सो हम लोग ये कैल्शियम का गिवन मास 20 ग्राम दिया हुआ है. तो गिवन मास को हम लोग
मोल में कन्वर्ट करना है, देन गिवन मास को हम लोग कैल्शियम का एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम इज एन एटॉम, कैल्शियम इज एन एलिमेंट। यहाँ हम लोग क्यों 49 को मोलिकुलर मास से डिवाइड किया था? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज ए कंपाउंड। कंपाउंड से रिलेटेड मास इज कॉल्ड मोलिकुलर मास, बट एलिमेंट और एटॉम से रिलेटेड मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास। सो देन atomic mass of, you have to remember at least atomic number 30 for all the elements, atomic number and mass number or atomic mass of calcium, calcium का symbol है Ca, equal to how many? 40 ग्राम। calcium का atomic mass 40 है। so therefore 20 gram of calcium equal to how many moles of calcium? given mass of calcium 20 divided by atomic mass of calcium how many? 40। ये हो गया मोल में, that means it is equal to how many mole? half mole। similarly suppose one more question, suppose 11.2 liter of carbon dioxide gas at NTP। regarding NTP, full form of NTP is normal temperature and pressure. In chemistry, normal temperature is considered as 0 degrees Celsius and normal pressure is 1 atmosphere, also 1 bar। so हम लोग अभी क्या करना है? गिवन वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है। तो गिवन वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? गिवन वॉल्यूम को, सब्सटेंस का गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना है। व्हिच वन इज द मोलर वॉल्यूम? 22.4 लीटर। व्हाई इट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम? बिकॉज एट NTP 1 mole of any gas is always occupying how many volume? 22.4 liter of volume। so therefore 11.2 liter of carbon dioxide gas at NTP occupying how many volume? given volume 11.2 divided by molar volume 22.4 liter, then mole में convert हो गया। given volume divided by molar volume equal to number of mole, this is also equal to how many mole? half mole। so given volume we can convert it into number of moles by dividing molar volume 22.4 liter। so one more question, suppose 6.02 into 10 to the power 22 molecules of nitrogen equal to how many moles of nitrogen। so अभी हम लोग given molecules को मोल में कन्वर्ट करना है। so given molecules को मोल में कन्वर्ट करने के लिए given molecules को हम लोग क्या करना पड़ेगा? एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। so therefore 6.02 into 10 to the power 22 molecules of nitrogen equal to how many mole of nitrogen? given molecule how many? 6.02 into 10 to the power 22 divided by Avogadro's number 6.02 or 6.022 or 6.023 कंसिडर कर सकता है। और हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? 6.02 into 10 to the power 23। so this is equal to how many? 1/10 रह जाएगा, क्योंकि 6.02 कैंसिल हो गया। 10 to the power 22 नीचे का 10 to the power 23 कैंसिल हो गया। 10 to the power 22 कैंसिल हो गया, तो 1 का पीछे में एक ही 0 रह गया। so this is mole, 1/10 mole, 1/10 mole तो 0.1 mole। so देखो इन ऑल दिस क्वेश्चंस हम लोग क्या किया? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन मास को मोल में कन्वर्ट किया, सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग गिवन मास को मोल में कन्वर्ट किया, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग गिवन वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट किया, एंड फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग क्या किया? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट किया। सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, very simple numericals, just you have to remember the formulas that we have been set up in the previous class. So now in this question we have to calculate the number of carbon, oxygen and hydrogen atoms in 90 gram of glucose.
Glucose is an organic compound. What is the molecular formula of glucose? C6H12O6. So हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन एटम से, कितना ऑक्सीजन एटम से, कितना हाइड्रोजन एटम से हम लोग फाइंड आउट करना है. सो नंबर ऑफ एटॉम्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना ग्लूकोज मोलिकुल्स है. पहले हम लोग मोलिकुल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मोलिकुल्स को नंबर ऑफ एटॉम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मोलिकुल्स आर मेड अप बाय एटॉम्स. सो 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोलिकुल्स है फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हम लोग 90 ग्राम ग्लूकोज को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब 90 ग्राम ग्लूकोज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो 90 ग्राम ग्लूकोज को मोल में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास 90 को डिवाइड करना पड़ेगा ग्लूकोज का मोलर मास से. सो मोलर मास और मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज इज नॉट गिवन इन द इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6. सो 6 कार्बन एटम हियर, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, hydrogen number of hydrogen in glucose is 12 into 1 is the atomic mass of hydrogen plus oxygen atom 6 into कितना हो गया 16. ठीक है. सो मल्टीप्लाई करके सभी को प्लस करने से क्या हो जाएगा 180 ग्राम. सो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 180 ग्राम. दैट मीन्स 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. क्योंकि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस और एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस. सो हम लोग अभी देन क्या कैलकुलेट करना है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितना मोल ग्लूकोज है फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे फाइंड आउट करेगा, गिवन मास 90, इनको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज इक्वल टू कितना मोल हो गया, हाफ मोल. सो नेक्स्ट हम लोग मोल्स को मोलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो मोल्स को मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए सो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन मोल्स कन्वर्टेड इनटू मोलिक्यूल्स. सो रिमेंबर इट, नंबर ऑफ मोल्स सपोज n नंबर ऑफ मोल्स को मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, मोलिकुल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को सब्सटेंस का मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. सपोज यू हैव n moles of a substance. So n mole of substance equal to how many molecules of the substance? n mole को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो. सो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है. नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास और एटॉमिक मास से डिवाइड कर देने से सब्सटेंस का मास ग्राम में मिल जाता है. नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देने से सब्सटेंस का वॉल्यूम लीटर में मिल जाता है. सो अभी हम लोग यहाँ मोल्स को मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो मोल्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया. सो 2 का साथ इसको कैंसिल कर देने से 3.01 इंटू 10 to the power 23 molecules. That means 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोलिकुल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोलिकुल्स आर प्रेजेंट, 3.01 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ मोलिकुल्स आर प्रेजेंट.
सो क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. सो 90 ग्राम ग्लूकोज में इतना मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सपोज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही कैलकुलेट करना है. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने के लिए देखो ग्लूकोज में कितना कार्बन एटम है, 6. तो 6 इंटू 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना मॉलिक्यूल्स है, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो 6 को हम लोग 6 से इनको मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल गया. सिमिलरली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए इन ए मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देयर आर 12 हाइड्रोजन एटम. सो 12 से हम लोग ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग निकला 90 ग्राम ग्लूकोज में, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा. 12 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने के लिए, सो 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल इज कंटेनिंग हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, 6. तो 6 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.01 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देने से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकलेगा. सो मोल्स इज द बेसिक यूनिट. तो मोल्स को हम लोग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकता है बाय मल्टीप्लाइंग एवोगाड्रोस नंबर. मोल्स को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर सकता है बाय मल्टीप्लाइंग मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास से. मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता है by multiplying molar volume 22.4 liter. So in this question 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना ग्राम कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम से फाइंड आउट करना है. इसलिए 90 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल ग्लूकोज है ये हम लोग फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया. फिर मॉलिक्यूल्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया, एटॉम्स में कन्वर्ट कर दिया. सो this is one of the question related to mole concept. So this is one more question you have to solve, you have to determine. Suppose calculate the number of carbon and oxygen atoms in 11.2 liter of carbon dioxide at NTP. सपोज दिस इज योर होमवर्क, ये है होमवर्क. तो क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP. वॉल्यूम का बारे में मेंशन करने से NTP टर्म लगाना ही पड़ेगा. सो 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना कार्बन एटम है, कितना ऑक्सीजन एटम है, हम लोग फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है. सो वॉल्यूम से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा. मतलब 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालना पड़ेगा. और मॉलिक्यूल कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इक्वल टू हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड आउट करना है. फिर मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग एवोगाड्रोस नंबर. फिर मॉलिक्यूल्स को एटॉम में कन्वर्ट करो. वेरी सिंपल. सो यू हैव टू सोल्व इट फॉर प्रैक्टिस. So today we are also going to discuss one more topic, determination of percentage composition. That means particular एक compound में how many mass percentage of atoms of different elements are present in a compound. We are going to calculate it. So particular suppose एक water. तो वाटर का 100 ग्राम में, कितना ग्राम में, 100 ग्राम वाटर में कितना परसेंट आउट ऑफ 100 कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. और दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ
percentage composition or determination of mass percentage. There is a formula to determination of mass percentage. So mass percentage of an element mass percentage of an element in a compound is equal to number of atoms of element into atomic mass of element divided by molecular mass of the compound. So this is the relation to find out, और रिलेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. 100 से मल्टीप्लाई कर देने से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मास परसेंटेज निकलेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड. सो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड. And relation you have to multiply it by 100, then it is converted into percentage. Suppose glucose is a compound C6H12O6. Glucose is a compound. In this compound we have to calculate the mass percentage of carbon, mass percentage of hydrogen and mass percentage of oxygen. तीनों एलिमेंट का mass percentage find out करना है. तो mass percentage of the different elements present in the compound, to find out it, first of all then हम लोग molecular mass find out करना पड़ेगा compound का. तो molecular mass of glucose में carbon atom 6 into 12 is the atomic mass of carbon, hydrogen atom 12 into 1 is the atomic mass of hydrogen, oxygen atom 6 into 16. So multiply करके plus करने से ये क्या आ जाएगा 180 ग्राम. So molecular mass or molar mass of glucose is 180 gram. Now in this compound, in glucose, mass percentage of carbon equal to number of carbon atom in this compound 6 multiplied by atomic mass of the compound 12 into 100 divided by molecular mass of the compound 180. तो इसको कैलकुलेट करो, परसेंटेज में मास परसेंटेज ऑफ द कार्बन निकल जाएगा इन दिस कंपाउंड. सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास. ये भी परसेंटेज में आ जाएगा. सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इन द ग्लूकोज 6 इंटू 16 atomic mass of oxygen multiplied by 100 divided by 180. ये भी क्या आ जाएगा परसेंटेज में. सो ग्लूकोज में सभी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकल जाएगा. सो ये कैलकुलेशन राइट होगा जब सभी का परसेंटेज प्लस करने से ऑलमोस्ट 100 होगा. 100 सभी परसेंटेज को प्लस करने से 100 होना पड़ेगा, देन योर कैलकुलेशन इज राइट. सो to determine the mass percentage in a compound, just you have to remember the formula. So suppose it is a homework, you have to solve it. Calculate the mass percentage of sodium, carbon, oxygen and hydrogen atoms in sodium carbonate. This is the compound. So this is a compound in which you have to find out mass percentage of sodium, carbon, oxygen and hydrogen. Sodium carbonate का formula, this is sodium carbonate. This 10 number of molecules are called water of hydration, water of crystallization. So sodium carbonate का साथ water of crystallization और water of hydration कितना होता है 10 molecules of water.
सो ये जो कंपाउंड है, इन दिस कंपाउंड यू हैव टू फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम. तो very simple, just you have to apply the relations. So thanks for today. Next day we will discuss another important topic of this chapter. Thank you.